So good evening everyone. Today we are learning linear equations chapter. So I would like to welcome each one of you to today's class. Hope you will learn it in a very gracious manner. So so let's start talking about linear equations. So what is the first thing that comes to your mind when you hear about linear equation? You all have to tell me one by one. Okay. So so linear equation is basically a equation which consists of constants and variables. C means constant and V means variable. This I have portrayed as of now. What are constants? Now you all be having a doubts. What are constants and what are variables? Before telling you what is a constant and what is a variable, I would like to say that a linear equation is an equation which consists of constants, variable and a equal sign. Without equal sign, we don't have a linear equation at all. We have a constant, not a constant, we can have many constants, we have variables and we have a equal to sign. The combination of the constants, variables and the equal to sign is called as linear equation. So let's start. What is constant? Constants क्या होता है? Basically मैं आपको बताता हूँ. बहुत सिंपल होता है constants. कोई भी नंबर, suppose the example is 2, 4, 6, कोई भी नंबर एक कांस्टेंट होता है लीनियर इक्वेशन. ओके, जैसे 2 है, 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. और 2 की जगह हम किसी और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते. जहाँ पे 2 की जरूरत है वहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे. दैट्स व्हाई 2 इज अ कांस्टेंट. 2 इज अ यूनिवर्सल वैल्यू. 4 is a universal value. 6 is a universal value. These are the universal values which cannot be changed. चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, but it cannot be changed. So these are the constants. इसीलिए इनको constants कहते हैं. The next is variable. So what are variable? So in our equations, कहीं कहीं हमारे पास ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता है बेसिकली कि उसकी वैल्यू क्या आएगी. उन्हीं एलिमेंट्स की ना वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है बेसिकली. जब आप ट्राई करते हो अपने इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन को, और जब आप उस वेरिएबल की वैल्यू का पता करने की कोशिश करते हो, तब जाके उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी एक वैल्यू आए. इट कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज. बेसिकली वी यूज एक्स, वाई, ए, बी. तो हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं. इसका मतलब ये होता है दैट वी आर हैविंग अ वेरिएबल एक्स. उस वेरिएबल एक्स की जगह हम कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली. ठीक है. So this is all about linear equation, and we have constants, we have variables and a equal to sign which is very mandatory. Okay, equal to sign के बिना there cannot be any linear equations. So let me tell you more about the linear equation. Linear equations are the equations of the first order. They are always of the first order. हमेशा order इनका first होता है. The linear equations are defined for lines in the coordinate system. Now let me tell you what is a coordinate system. पता होगा आप लोगों को, बट मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है. This is a coordinate system जहाँ पे हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं O, which means origin, and the coordinates of origin are 0, 0. 0, 0 is basically the origin. ठीक है. This is our x-axis, this is our y-axis. इन एक्सिस के ऊपर हम जब नंबर को प्लॉट करते हैं तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एंड हमेशा वो कोऑर्डिनेट्स x और y के फॉर्म में होते हैं. ओके. जो हमेशा हमारा जो लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो हमेशा x एक्सिस डिनोट करेगा, और जो राइट वाला कोऑर्डिनेट है वो हमेशा y एक्सिस डिनोट करेगा. गेटिंग इट? सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर
and the name of the point is A, and the values are A. The values are 2, 1. 2, 1. तो 2, 1 क्या डिनोट करता है? 2, 1 ये डिनोट करता है that the value of 2 is on the x-axis and the value 1 is on the y-axis. यानी कि इस पॉइंट से x-axis की जो दूरी है वो है 2 और इस पॉइंट से जो y-axis की दूरी है वो है 1. तो दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जहाँ पे हम डिनोट करते हैं डिनोट करते हैं हमारे पॉइंट्स. तो ये पॉइंट का मैंने एक एग्जांपल बता दिया. नाउ इट हैज 4 क्वाड्रेंट्स. द फर्स्ट, दिस इज द, लेट मी ड्रॉ इट हियर. So this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and here we have the fourth quadrant. These are the 4 quadrants we have. In our first quadrant, both the x-axis and y-axis will be plus comma plus. Okay, both will be positive always. This is universal. In our second quadrant, the x-axis will be negative but the y-axis will be positive. Now in third quadrant, we have x-axis as negative and y-axis as negative. Both are negative here. See, this is 0, 0. इसके नीचे आओगे तो x-axis negative होगा and इसके left जाओगे तो y-axis negative होगा. Talking about the fourth quadrant, here the x-axis is plus but the y-axis is in minus because it is below 0 to 0, so that's why. Okay, so this is all about the coordinate system. Okay, so लीनियर इक्वेशंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिनोट करते हैं. हमें x और y की वैल्यू हमें पता चलती है और x और y या z जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसके हिसाब से हम उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ड्रॉ करते हैं. ओके, सो व्हेन द इक्वेशन हैज अ होमोजेनियस वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 है, इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसकी जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो मैं आपको आगे फर्दर बताने वाला हूँ. ठीक है. Okay, so moving on to the next slide. So here we have basically the 3 types of linear equations as of now. 3 types है हमारे पास linear equations के. वो 3 type है 1 variable, 2 variable and 3 variable. दिख रहा होगा आपको screen पे. And 3 variables. These are the 3 types. So let me explain one by one linear equation in 1 variable, linear equation in 2 variable and linear equation in 3 variables. Let me explain this one by one. Talking about linear equation in one variable में क्या होता है, we have different constants but we will be having only one variable. We can have n numbers of constants, which means we can have as many constants as we want, but we have only one variable. This will be called as linear equation in one variable. See, in the examples as you can see, here we have x x x x x x, तीनों में एक x है तो तीनों में सिंगल वेरिएबल है. ओके, वी हैव ओनली वन वेरिएबल एंड इस वाले एग्जांपल में हमारे पास एक वेरिएबल वो है x. टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वी ऑलवेज हैव मोर देन वन वेरिएबल. जैसे हम वन वेरिएबल में हमने x लिया ना तो हम x की जगह कुछ भी ले सकते हैं. a कैन बी अ वेरिएबल, y can be a variable, etc. But there should only be one variable, not more than one. हमेशा एक ही होना चाहिए. Talking about linear equations in 2 variables. So this is the second video of linear equations,
and I was telling you the three types of linear equations. Okay, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल हमेशा वन होता है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था, एक्स इज अ वेरिएबल जहाँ जिसके अंदर हम कोई भी कांस्टेंट फिट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। ओके, हमेशा एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे है एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल। ओके, टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल हमेशा दो होते हैं। वी ऑलवेज हैव टू वेरिएबल्स। ओके, so in examples you can see x and y, there are two variables a and b. We have two variables in this equation as well. There is another equation, here we have two variables. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमेशा दो वेरिएबल रहेंगे, एक्स एंड वाई या ए एंड बी या जो भी, कोई भी आप वेरिएबल चूज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं तीन वेरिएबल्स होते हैं। So as you can see in this equation x, y, z, we have three variables a, b and c. Here also we have three variables x, y and z. इसके साथ में जो कांस्टेंट है वो कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, कुछ भी हो वो फर्क नहीं पड़ता है। बट वी शुड ऑलवेज हैव दिस मच नंबर ऑफ वेरिएबल्स। So here we have x, y and z variable, and we have a, b and c also, a, b and c. ठीक है, so these are basically the three types of linear equations that we have. Moving on, there are three forms of linear equations as well. Okay, we have three forms of linear equation. Our first form is standard form of linear equation. Second form is slope intercept form, and the third form is point slope form. ये तीनों हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। ये तीनों फॉर्म्स हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे और बहुत इजी होता है। ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये आप जरूर याद रखिएगा। ओके, तो मूविंग ऑन, द फर्स्ट थिंग that we are going to learn is the standard form of linear equation, यानी कि this one, standard form of linear equation. This is basically the standard form of linear equation. अब मैं आपको explain करता हूँ। Standard form of linear equation in one variable is represented by this. This is basically a combination of constants and variables. ये तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। Now the standard form of linear equation in one variable will be like this, where a is going to be a constant. ये हमारे पास जो है वो constant है, x जो है वो एक वेरिएबल है एंड v भी एक कांस्टेंट है। तो अगर जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है और वो अगर इस फॉर्म में है, then it will be called as standard form of linear equation in one variable. यहाँ पे we have only one variable, a and b are basically the constant. यहाँ पे एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, a should not be equal to 0. अब आप पूछोगे क्यों a 0 क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0 इंटू एक्स हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0 और b क्या है हमारे पास जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बट मैंने क्या बोला था, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन? वी ऑलवेज हैव वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन कांस्टेंट एंड इक्वल टू साइन। तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट तो है, इक्वल टू साइन भी है, बट हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू है 0, उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वो भी 0 हो गया, which means there is no variable. So that's why a should not be equal to 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वही खत्म हो जाएगी, और अगर वही खत्म हो गई तो हम उसे लीनियर इक्वेशन बोल ही नहीं पाएंगे। So that is the reason why we have a is not equal to 0. Talking about the standard form of linear equation in two variables, it is represented by this equation where a is a constant, x is a variable, b is a constant, y is a variable, and c is a constant. Here also this rule applies where a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. Or now again you will ask me why, and my answer is same. If we will put the value of a and b as 0, we will not have exactly two variables. If we will put a is equal to 0, then the equation is going to be by plus c, which is equal to 0. So this will be standard form of one variable, right? This will not be the standard form of two variables. That's why, that's why a should not be equal to 0, b should not be equal to 0. Same goes for b and vice versa. Getting it? Moving on. Moving on to the standard form of linear equation in three variables, it is represented by this equation: ax plus by plus cz plus d, where a is a constant, x is a variable, b is a constant, y is a variable, c is a constant, and z is a variable, and d is a constant as well. Again, we have a rule as we have in the other two: a is not equal to 0, b is not equal to 0, and c should not be equal to 0. Again, this is because maintain the numeric form of the variable, three variables should be maintained. That's why we use this as in our standard form. Okay, moving on. Moving on, talking about slope intercept form. The formula of slope intercept form is y is equal to mx plus c. In this, y is a variable, okay, x is also a variable, c is a constant. These things are common which we have learned earlier. But there is one more thing here, m. What is m? M is basically the slope. We have slope, and now what is slope? That I'll tell you later. आगे मैं आपको स्लोप भी बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो कि m एक स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो c होता है वो हमेशा y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि उसका डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट से कितना दूर है, दैट विल बी y इंटरसेप्ट, ओके, दैट विल बी y इंटरसेप्ट हमेशा रहेगा। जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो y से जितना दूर होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड हियर c as c, ओके, ठीक है। एंड x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3x plus 7, 3x plus 7, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हुआ, m की जगह आ गया 3, स्लोप हो गया 3, एंड y इंटरसेप्ट से वैल्यू हो गई हमारी 7, ओके। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल. So if a straight line is parallel to x-axis, then the x coordinate will be equal to 0. These are the two conditions. अगर straight line पैरेलल है x एक्सिस के, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू v. एंड अनदर केस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो mx प्लस b इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपॉन m. These are the two conditions. So in last video I have taught you the slope intercept form.
and even I have taught you these two special cases. तो ये दो स्पेशल केसेस का इंपॉर्टेंस कहाँ होता है? जब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी इन दो स्पेशल केसेस के ऊपर. तो rather than putting the value of zero and solving the equation, आप डायरेक्टली y is equal to b लगा के एंड x equals to minus b upon m लगा के डायरेक्टली उसका आंसर आप निकाल सकते हो. This will save your time, and the more you will save your time, you will be able to answer more and more questions. Competitive example is all about saving time. It's not about accuracy, it's about doing and solving questions accurately within less time. Okay, so that is how the strategy works. So इन दोनों स्पेशल केसेस को जरूर याद रखिएगा. मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, मूविंग ऑन. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नाउ व्हाट इज स्लोप. स्लोप इज बेसिकली a line which is equal to the ratio of change in x y coordinate to the change of x coordinate. देखिए स्लोप क्या होता है? कभी भी जो y कोऑर्डिनेट्स के बीच जो चेंजेस हो रहे हैं और x कोऑर्डिनेट के बीच में चेंजेस हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रेशियो को हम हमेशा स्लोप कहते हैं. सपोज दिस इज अ कोऑर्डिनेट. ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पे एक पॉइंट है. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है. इस पॉइंट का कुछ सिस्टम होगा एक्स वन वाई, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, और इसका कुछ होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स टू वाई टू, एक्स टू एंड वाई टू. अब हमें इसका निकालना है स्लोप. एम निकालना है हमें. वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द स्लोप आउट ऑफ इट. वाई टू माइनस वाई वन, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा 2 स्टार बनाना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है. वाई टू माइनस वाई वन ऑन एक्स टू माइनस, इसका यूज करके आप स्लोप निकालोगे. ओके, so this is what the slope is all about. Moving on, now I will be explaining you point slope form. ये भी एक तरह से स्लोप का ही फॉर्म है देखा जाए, बट ये पॉइंट स्लोप फॉर्म. यहाँ पे इन लास्ट वन वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 स्लोप निकालने के लिए. बट यहाँ पे वी ओनली नीड अ सिंगल कोऑर्डिनेट, उससे हम उस लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो फॉर्म की हुई होती है उसको एक्स और वाई प्लेन पे हम इस फॉर्मूले से डिनोट, इससे हम डिनोट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो ये वाला y है ये हमारा वेरिएबल होता है. दिस y इज वेरिएबल, दिस y1 is constant, m is also a constant value, x is a variable, and this x1 is a form. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. x1 and y1 are basically the coordinates of a point. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान लो यही एक लाइन है और ये जो कोऑर्डिनेट है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट. ठीक है, चलो इसी कलर में करते हैं. ये एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 2,2, 2,2. तो इसका इक्वेशन क्या होगा?
इसका इक्वेशन होगा y, हमारे पास वेरिएबल है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये है y1 की वैल्यू, ये है y1, ये है x1, y1 की वैल्यू है 2, y माइनस 2 विल बी इक्वल टू, इसका स्लोप भी आपको गिवन होगा, स्लोप हमेशा आपको गिवन होगा, यहाँ पे मैं m ही लिख रहा हूँ बट इसका स्लोप आपको गिवन होगा m इंटू x, हमारे पास वेरिएबल है, माइनस x1 की वैल्यू है 2, ठीक है। So this is how we can form the equation in point slope form. Getting it, everyone? Hope you are getting it. Okay. Okay. This is the point slope. Very important. Moving on. Now we have some linear equations, their general forms and their examples. Now I will uh, tell you each one of the equations one by one. Talking about the slope intercept form, हमारे पास this is the formula, y is equal to mx plus b, and this is the example, y plus 2x is equal to 3. यहाँ पे आप equal to के इस साइड है mx, m की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बट अगर हम इक्वेशन के उस साइड इसको लेके जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी इसका जो स्लोप होगा वो होगा -2 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। मूविंग ऑन टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे ये इक्वेशन में तो सीधा सीधा किया हुआ है, यहाँ पे 3, y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 6 है एंड x1 की वैल्यू है 2, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये भी सीधा सीधा आपको दिया हुआ है, c की वैल्यू -6 है, ये चीज आप याद रखना, a और b की वैल्यू आप समझ जाओगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, बट c की वैल्यू -6 है। रिमेंबर, माइनस को बहुत वैल्यू देनी है, कभी भी माइनस को नेगलेक्ट नहीं करना है, माइनस की बहुत इज्जत होती है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है? हमेशा इसको वैल्यू देनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्ट फॉर्म, this is also one of the important forms, x upon a plus y upon b equals to 1, यहाँ पे a, x is variable, a is constant, so a की वैल्यू है 2, y is variable, b is constant, तो b की वैल्यू है 3। now a function f of x एक फंक्शन है जिसके अंदर इसकी वैल्यू है x plus 3, where 3 is a constant, x is a variable, बस इन दोनों को हमने बाइफरकेट किया यहाँ पे, फंक्शन है यहाँ पे हमारा, देन दिस इज द कांस्टेंट। फंक्शन में आप x की वैल्यू, हमारे पास x होना काफी जरूरी है, x के साथ आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म्स एंड देयर एग्जाम्पल। नाउ नाउ वी नीड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, आपको ऐसे ऐसे इक्वेशंस आएंगे एंड यू गाइस नीड टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। काफी इजी है इनको सॉल्व करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। तो इसको सॉल्व आप कैसे करोगे, सेम करोगे, पहले तो 2x माइनस 10, अभी डिवाइड बाई 2 को हम सेम रहने देंगे, या फिर हम चाहें तो अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड बाई 2 है तो इक्वेशन के इक्वल टू के उस साइड जाके मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 इंटू एक्स माइनस 1, तो हम x माइनस 1 को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6x माइनस 6। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, इक्वेशन को एक साइड ले लेंगे, तो 2x को हम उस साइड ले लेंगे एंड -10 को इसी साइड रहने देंगे, तो -10 -6 इधर आके +6 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 6x माइनस 2x, -10 + 6 -4 हो गया, 6x माइनस 2x 4x हो गया, तो 4 4 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1, बहुत सिंपल। Okay everyone, so that is all for today's class.
We will continue in the next part. Happy learning all of you. All the best.